Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in our previous video we had learned about the biogeochemical cycle, the cyclic flow of nutrient within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. The cyclic flow of nutrient within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. We had learned that the nutrients flow in a cycle. The flow of nutrient is cyclic and the flow of energy is a one-way transport. We also learn types of biogeochemical cycle. Mainly there are two types of biogeochemical cycle, gaseous cycle and sedimentary cycle. Today we will learn about the gaseous cycle, the first gaseous cycle, that is the carbon cycle. Let us see what is carbon cycle. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. So this abiotic carbon is a non-living thing, that is why it is called as abiotic. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic forms. Biotic forms means in plants and animals, mainly through the photosynthesis and respiration. So these abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic forms means in plants and animals, mainly through photosynthesis and respiration. Hence, the carbon cycle is one of the most important biogeochemical cycle. This plant convert carbon dioxide into carbohydrate by the process of photosynthesis. See this reaction. The first reaction is of photosynthesis. So this plant convert carbon dioxide into carbohydrate by the process of photosynthesis. So this carbohydrate here is the glucose. Glucose is a type of carbohydrate, C6H12O6. This is the formula of glucose and this glucose is a type of carbohydrate. So this plant convert carbon dioxide, here carbon dioxide and water. Plants take carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil, and in the presence of sunlight and chlorophyll they convert this into carbohydrate, means glucose. Here is a glucose and water and oxygen. See, C6O2 is released, means oxygen is released in this process. ये photosynthesis की process है. Plants oxygen carbon dioxide जो है atmosphere से लेते हैं, water soil से, and in the presence of sunlight and chlorophyll they prepare glucose, water and oxygen is released in the atmosphere. ये oxygen release करते हैं ये process में. ये process को constructive process कहा जाता है या anabolic process कहा जाता है, और क्योंकि यहाँ पे जो है सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ग्लूकोज बन रहा है. दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस. द सेकेंड रिएक्शन इज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ये सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है. यहाँ पे जो ग्लूकोज बना है उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देते हैं. तो ये दोनों रिएक्शन जो है, एक रिएक्शन जो है वो पहले फोटोसिंथेसिस की, वो सिर्फ प्लांट में होती है, और सेकेंड रिएक्शन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. ये रिएक्शन प्लांट्स में दोनों रिएक्शन होती है, लेकिन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है एनिमल्स में नीचे वाली रिएक्शन होती है जो सेलुलर रेस्पिरेशन की है. ये रिएक्शन को डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कैटाबोलिक प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर और एनर्जी बन रहे हैं. तो पहली प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में. प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, इसलिए जो है प्लांट्स जो है लगाना चाहिए, प्लांट ट्रीज करना चाहिए, क्योंकि दे प्यूरिफाई आवर एयर, दे ऐड द ऑक्सीजन इनटू द atmosphere. Next see, herbivores feeds upon plants. Herbivores क्या खाते हैं? Plants.
और कार्निवोरस फीड्स अपॉन हर्बिवोरस, कार्निवोरस हर्बिवोरस को खाते हैं। इन दिस वे बायोटिक कार्बन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बिवोरस, फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस एंड फ्रॉम कार्निवोरस टू अपेक्स कंज्यूमर। हर्बिवोरस प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट के अंदर का जो कार्बन है वो हर्बिवोरस में जाता है, हर्बिवोरस को खाते कार्निवोरस तो वो कार्निवोरस में जाता है, कार्निवोरस से जो है वो अपेक्स कंज्यूमर में जाता है। और आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर के डेथ बाद दे आर डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी। बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर, दे डिकम्पोज द ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन जो है कंपाउंड के शक्ल में होता है। अपन ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के शक्ल में एटमॉस्फेयर में होता है, ये कंपाउंड के शक्ल में होता है। और जो है सॉइल के अंदर अपने को जो है डायमंड फ्लोरीन के शक्ल में कार्बन अपने को, डायमंड ग्राफाइट लाइमस्टोन के शक्ल में, कोल के शक्ल में जो है वो अपने को सेडिमेंट में मिलता है। और जो है एटमॉस्फेयर में वो कंपाउंड में होता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपाउंड के शक्ल में एटमॉस्फेयर में होता है। तो अगेन वो जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में रिलीज हो जाता है। इन दिस वे दिस साइकिल गोज ऑन कंटिन्यूसली, दिस साइकिल इज नोन एज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल इज कंटिन्यूसली पास फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर, प्लांट से हर्बिवोरस, हर्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से अपेक्स कंज्यूमर, अपेक्स कंज्यूमर से डिकम्पोजर। आफ्टर that it release again into the atmosphere. After the death of living organism, carbon goes on the atmosphere and again taken up by the living organism. Living organism again atmosphere में ऐड हो जाता है और again living organism उसको लेते हैं, again plants absorb कर सकते हैं atmosphere से और इस तरह से वो पास होता है one tropical level to another tropical level. तो this cycle is known as carbon cycle. ये पूरी साइकिल को कार्बन साइकिल बोलेंगे। See, do you know और कहाँ से आता है एटमॉस्फेयर में? फैक्ट्रीज रिलीज़ करती है कार्बन डाइऑक्साइड, व्हीकल से भी निकलता है, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स से आता है एटमॉस्फेयर के अंदर, फॉसाइल फ्यूल्स से भी जो है पेट्रोल डीजल इसमें भी कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू अबायोटिक प्रोसेसेस लाइक बर्निंग ऑफ फॉसाइल फ्यूल। फॉसाइल फ्यूल पेट्रोल डीजल ये जब बर्न होती है तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एंड वुड फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनो एक्टिविटी से भी एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द बायोटिक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐड होता है एनिमल्स के। द इक्विलिब्रियम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन बाय प्लांट्स। और प्लांट्स जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। दैट इज़ वाई प्लांट मेक्स द एयर प्योर। ऑक्सीजन ऐड करते हैं, एयर को प्योर बनाते हैं, जो अपने ब्रीदिंग के लिए अपने को ऑक्सीजन ज़रूरी है वो उस एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं। सी दिस कॉलम, थिंक अबाउट इट। The carbon cycle is very effective in the temperate region. Why is it so? कार्बन साइकिल ज़्यादा इफेक्टिव क्यों है टेम्परेट रीजन में? तो टेम्परेट रीजन में क्या होता है? हैव अ deciduous forest, घना जंगल होता है, which have huge leaf fall, ज़्यादा लीफ फॉल होता है वहाँ पर, deciduous forest है। These leaves decompose animals are also abundant in दिस फॉरेस्ट। लीव्स डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। घना जंगल होता है, लीफ फॉल बहुत होता है, लीफ डिकम्पोज होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो अबंडेंट, एनिमल्स भी डिसिडियस फॉरेस्ट में बहुत होते हैं, एनिमल रेस्पायर करते हैं, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में। सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन इज मोर इफेक्टिव, दैट इज़ वाई इन अ टेम्परेट रीजन में वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा वहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन प्रोसेस लीव्स की होती है और वहाँ एनिमल ज़्यादा होने की वजह से वो जो है प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन अर्थ इज़ कॉन्स्टेंट, व्हाई इज़ देयर अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड? इवन दो द कार्बन कंटेंट ऑन अर्थ इज कॉन्स्टेंट, कार्बन का कंटेंट कॉन्स्टेंट है, वाई इज़ देयर अ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब
इंफ्रारेड रेडिएशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दिस कॉज द ग्लोबल टेम्परेचर टू राइज, इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए वो जो है राइज इन टेम्परेचर होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन इन द एयर एंड द राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आइडेंटिफाई द relationship between carbon in the air and the rise in atmospheric temperature. So when carbon dioxide concentration increases, heat is trapped in the atmosphere. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, if the concentration of carbon dioxide decreases, the temperature will decrease. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो उसका जो है एटमॉस्फेयर के अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, तो जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिक्रीज़ हुआ तो जो है हीट कम हो जाती है एटमॉस्फेयर की, और जो है टेम्परेचर लोअर डाउन होता है। तो इन दिस वे there is a relationship between the carbon in the air and the rise in atmospheric temperature. If carbon is increased, amount of carbon is increased, the temperature will also increase. And if temperature will carbon will decrease, amount of carbon is decreased, the temperature also decrease. So this is a carbon cycle. In our next video we will learn about the oxygen cycle. Learn lesson number 6. I will take test on lesson number 6 soon. Learn this carbon cycle and draw this write these definitions. Don't draw, write this definition, two definition of photosynthesis and respiration 2 times. Allah Hafiz.